I'm putting it in my WhatsApp status and my Facebook profile. Okay, great. Hello and welcome to Kacha Papita YouTube stream. We were initially supposed to discuss stand-up with this panel, but on the तो अब courtrooms में discuss हो रहा है तो हमने सोचा कुछ simple ही ले लेते हैं. So we've taken Gullak. It's a TVF show and it's on Sony Live. It's a very nice show. Season 2 अभी recently आया है. It's Chirag's favorite. He's the one who has recommended it. Oh, we already have Bantidas fan who's come. But we have Praneet who's come on the stream for the first time, and we have Chirag again. He's come for the first time, and Rito Brata is a regular. So we have two great comedians and Rito Brata today. ये लाइन मैंने सोचा था फिर भी मैंने mess up कर दिया. Anyway, think of better insults. But yeah, this how did you guys like the show? कोई Yes. कमी नहीं होगा जो बोलेगा कि शो अच्छा नहीं लगा. But Actually, why don't one of you give us a summary of what the show is about? तो दोस्तों ये शो कहानियों के बारे में नहीं है, किस्सों के बारे में है. किस्से जो बस हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये कहानी होती तो खीर में जहर मिला दिया जाता. Wow, एक्चुअली समराइज कैसे करोगे शो को तुम? तू क्या बोल रहे हो इसके बारे में? yeah, Rito Brata, what would you say about the show? see, कहानी नहीं है. Pradeep, एक्चुअली देखो, क्योंकि शो है तो कॉम्प्लेक्स ही, बट उसको हम ट्रिवियलाइज नहीं करना चाह रहे कि डे टू डे स्मॉल मोमेंट्स को अच्छे से रिक्रिएट कराए. ऐसा इट सीम्स लाइक वी आर डूइंग डिससर्विस टू इट, इसलिए उसका वैसे समरी देने का मन नहीं है. I like the fact that you can't say it's a sort of different format in a sense, because like they said, there's no beginning, middle, end. It's just moments, which is great. It is also for the layman. ऐसा नहीं है कि नहीं, बट आई थिंक देयर इज अ बिगिनिंग मिडिल एंड. वो स्टार्टिंग में प्रॉपर सेटअप करते हैं उस एपिसोड में, वो क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का स्केल बड़ा नहीं होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो आता है और फिर एंड में रिजॉल्व करते हैं. फर्स्ट सीजन में, सेकंड सीजन में वो लोग लाफ्स के लिए काफी चीजें रिजॉल्व नहीं कर रही हैं, अगर तुमने नोटिस करा हो. yeah. सेकंड सीजन के ज्यादातर शुरू के आई थिंक सेकंड, थर्ड और फोर्थ एपिसोड के कोई भी फनी एंड नहीं थे. मेजर कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ था. तो वो क्लोजर टू लाइफ आई थिंक, जैसे जिंदगी में चीजें रिजॉल्व नहीं होती तो वैसे. I have क्या सबको सीजन 2 अच्छी लगी? मतलब मुझे सीजन 1 like 5 on 5, but सीजन 2 4 on 5 टाइप्स लगी. सीजन 1 वाज फनीयर. सीजन 2 में जो होना चाहिए था कि मतलब वी नो द कैरेक्टर्स नाउ, तो थोड़ा मतलब आई एम पेशेंट टुवर्ड्स अ नॉन फनी एंडिंग. Okay. What about you guys? Praneet, what did you think about season 2? यार मुझे दोनों इक्वली उतने ही अच्छे लगे. एक तो यार पता नहीं, मेरी चॉइसेस बहुत अजीब रहती है. अभी लोगों को मिर्जापुर सीजन 1 ज्यादा पसंद आया था, मेरे को 2 ज्यादा पसंद आया. तो पता नहीं, मुझे तो वही, हाँ ज्यादा फनी नहीं था 2, लेकिन इमोशंस बहुत अच्छे से दिखाए थे. तो एक तो यार ये सारी चीजें आजकल लोगों को जमती नहीं है हिंदी प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे तो बहुत मस्त था. Yeah. Rito Brother, what did you think about season 2? Did you think it was as good as season 1? I'll say this one thing, that season 2 was different. Okay. Season 1 was different. And season 1 was an introduction to the characters. I think by season 2 we know about the characters. So now they are getting into something more deep other than laughter. Yeah, no. I still like season 1. You guys are not very convincing, guys. 30 minutes, huh? 30 minutes. नहीं, बट रीजन बता ना. ये तो तूने बस स्टेटमेंट मार दिया. क्यों? I like season 1 because it was unique, right? Like they said in the trailer. Like normally क्या होता है कि ट्रेलर में कुछ भी दिखा देते हैं और शो कुछ और ही होता है. But season 1 के लिए it was actually true. उन्होंने बोला कि हम ये गुंडागर्दी और ये सब नहीं दिखाएंगे, हम actual, So I thought season 1 had that. And season 2 में suddenly it became very emotional, and also I was like, no, but that's a personal bias. I still think that people should watch both the seasons. Both are equally good. What are your any favorite moments or scenes from the show that stand out for you right away? तुमने काफी स्ट्रक्चर करके लाया है ये चीजें.
हाँ हाँ of See, course. कोई तो मेहनत करके आएगा. मेरा वो एक्चुअली सीजन 2 का एंडिंग बहुत सुंदर है. Yeah, हाँ, वो दोनों agree. भाइयों का इक्वेशन बहुत अच्छा है. Like और the वो thing that was actually very बहुत इमोशनल था. मैं अभी जस्ट मैंने खत्म करा था, मैं 5 मिनट पहले रो के ही आया. लाइक नॉट फुल फ्लेजेड, एकदम अब मैस्कुलिनिटी वो अपनी मर्दानगी मेंटेन करते हुए. मैं तो रिलेट किया, Nice. फुल रिलेट. मैं भी यार मेरा तो पार्टी यूट्यूब था. यार एक तो मेरा ना बड़ा भाई है, तो हम लोग का सेम इक्वेशन है, ठीक है. तो मैं तो बिंज वॉच कर रहा था, तो वो मेरे बाजू में ही बैठा था. सीजन 2 का एंड आया, ठीक है, और मैं बहुत इमोशनल हूँ, ठीक है. तो मेरे को तो रोना आ गया, ठीक है. वो उसको बोलता है ना जब कि ये 10,000 है, तू फोन लेने का सोच रहा हूँ और तुझे दे दूंगा. हाँ, और मैं इमोशनल हो गया हूँ और ऐसे मैं आंसू रोक रहा हूँ, और मेरा भाई, चल ये ऐसा कुछ नहीं करते तुम लोग. तो इसको इमोशन चाहिए बिल्कुल भी. ये मेरे को आई थिंक मेरे को भी इसलिए अच्छा लगा था कि मेरा भी छोटा भाई है, तो ये सेम इक्वेशन था. बट एक मैंने चीज इंटरेस्टिंग नोटिस करी है, जब भी मैं ऐसे सब शोज देखता हूँ ना जिसमें कुछ इमोशन फीलिंग दिखा रहे हो, तो उसके लिए इमोशनल हो जाऊंगा. फिर जब मेरा खुद का भाई है, वो मैं भाग में है जैसा. So I am very invested as an audience, but taking back nothing as a person. I think for me also this is true for my brother. मेरा भी मन करता है दिन में 4 बार उसका खून करने का, mostly because my mother loves him more, but that's a personal issue. ऐसा तो फिर मेरा और मेरा बहन का तो मेरा घर में टाइम कर दिया ना, 2.5 minutes मैक्सिमम इंटरेक्शन टाइम. के बाद हम लोग का Yeah, it is very rare कि, क्योंकि मुझे नॉर्मली ये बरजाटिया मूवीज ही दिखाते हैं ना जिसमें सब लोग इतने खुश हैं और ये सब. इट्स वेरी इरिटेटिंग व्हेन यू सी सच पीपल हु आर सो हैप्पी. पार्थ मकवाना says hello. पर मेरे को ना to the panel. मेरा इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, Yeah, माइट साउंड स्लाइटली सेक्सिस्ट. ये उसकी मम्मी थोड़ा ज्यादा ही क्रिब नहीं करती है In the second season. दोनों सीजन दोनों सीजन में. मतलब मुझे पता नहीं भाई, मेरी मम्मी तो बहुत प्यार से रहती है हम लोगों से, तो पता नहीं अगर ये कॉमन अकरेंस है क्या है. Yeah, और even I मेरे को agree. उसका हाँ शो में उसका दर्द समझ में आता है, लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है कि आप थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. बहुत बोल रही थी. हाँ Yeah. मतलब जब सारी चीजें वो इंस्टिगेट करती हैं, रूड भी होती हैं बहुत ज्यादा. मुझे पहले लगा कि शायद मेरी माँ बेटर है, लेकिन अभी मुझे समझा कि नहीं, वो ज्यादा बुरी थी. सबकी माँ ऐसी है. Rita, do you also feel the mother is a little too bitter? Yeah. There are extravagant characters, right? क्योंकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर जैसे लाइक बिट्टू की मम्मी. Oh yes. बिट्टू की मम्मी बिट्टू बहुत की अच्छी मम्मी है. I वो वाला सीन मेरे को बहुत अच्छा लगा जब वो गन्ना लेके आया था ना. नहीं, वो जितनी बार भी ये वाले सीजन में थोड़ी ज्यादा केयर फ्री हो गई है ना, जब मौका करती है, हेडफोन गाना सुनती है. Yeah. तो वो ज्यादा फनी बना दिया इस सीजन में. इवन वो 500 वाला नोट लेके वो चुराती है ना बच्चों से, ऐसे नहीं होते. वो बहुत प्यारा लगा उसने कि कभी नोट वापस ही नहीं दिया. This which was your do you guys remember the Bittu ki mummy stories? Which was your favorite Bittu ki mummy story? मेरा तो फेवरेट ये लगता है जब भी whenever he talks about that Annu, the elder child. हाँ कुछ हुआ नहीं ना उसका. ऐसे बोलते ना, पर अन्नू का तो Go ahead, yeah. वो मेरा एक्चुअली फेवरेट मोमेंट, तो इससे पहले पिछला क्वेश्चन ये था ना, फेवरेट मोमेंट क्या था. हाँ, फेवरेट मोमेंट डाइवर्ट हो गए थे. जब फर्स्ट सीजन में उसका रिजल्ट आ जाता है और उसका छोटा भाई कहता है कि आप भाग जाओ घर से, मैं घर पे सबको संभाल लूंगा, पेरेंट्स का मैं ध्यान रख लूंगा. मेरा बहुत ही छोटा सा मोमेंट है. बेसिकली एक वो होता है ना, जब वो भागने वाला सीन चल रहा होता है, फिर वो दुकान वाला उसको कुछ बोल रहा होता है, फिर दुकान वाले को बोलते हैं आपकी बेटी म्यूजिकली में वीडियो बना रही थी, अब भाग रही है बॉम्बे हीरोइन बनने के लिए. आई वाज लाइक दिस इज लाइक सच अ स्मॉल बट ग्रेट जोक. यार मुझे एक चीज बोलनी है. हाँ तू बोल फिर. नहीं गो अहेड. यार वो उसको दिखाता है ना, उसका बेटा, वो बोलता है कि वो म्यूजिकली पे वीडियोस बनाता है. हाँ. ठीक है, तो वो बाप बोलता है अच्छा क्या होता है वो, तो वो दिखाता है उसको. वो बोलता है अरे ये तो मीठा है, और मैं समझा कि ये सब बोल सकते हैं, अभी के टाइम पे चलते हैं ये सब. वो ये जितने भी बार इस सीरीज में मीठा यूज करा है, मुझे हमेशा हंसी आई है. मुझे हंसी आई है क्योंकि कुछ घर पे हंस सकते हो ना तुम, स्क्रीन पे देखते हो मैं ऐसा था. और 2 बार बोलता है वो ऐसा.
वो फर्स्ट सीजन में First फर्स्ट season एपिसोड में में भी कुछ इससे। बोलता है, ये मीठा। हाँ, वो पिंक कलर का कार्डबोर्ड रहता है ना, उस पे चार्ट हाँ। बनाते रहता है, तब वो बोलता है। फर्स्ट सीजन And- में एक और वो भी था जो मतलब अगेन ये जो मेरा एडोलेसेंट वो है उसको अपील करा था कि जो पाइनएप्पल कटा हुआ लाते, कहता है इसी को तुम कर देंगे मेरे को। हाँ, वो बहुत मस्त था। नॉटी उस पे बहुत हंसी आई थी। the first episode it is not Tehri. हाँ तेरी, हाँ। अब वो कनेक्ट अच्छा किया, लेकिन सेकंड सीजन में भी उसका वो कॉल बैक आता है कि तुझे ये तो Disappointment मिलता भी नहीं आता है। हाँ, सच एन ओपन माइकर जोक टू राइट ना, इस खाने को क्या कहते हैं हम, तो डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। और ये लड़की म्यूजिकली पे वीडियो बनाती है भी, बड़ा ओपन माइकर टाइप का जोक है। और एक भी है ना वो उसके कान पे लग गया और वो अंधा हो गया, वो जोक भी थोड़ा व्हाट्सएप टाइप वाला था। लगता है विपुल गोयल का रिजेक्टेड जोक थी। Sorry, I didn't hear it. Ritu, so what did you say? इसका rejected joke? वापस से काट देगा। नहीं कटेगा तो अब कुछ नहीं भैया, इतना एडिटिंग कौन करने वाला है। कोई डायलॉग्स, इफ यू रिमेम्बर एनी डायलॉग्स फ्रॉम द ये, जैसे वो पूरा मुझे ऐसे रटा हुआ तो याद नहीं है, बट वो अच्छा लगता है जब वो भाई वाला जो चिराग ने मोमेंट पॉइंट आउट किया ना, और फिर उसमें नरेटर पीछे से बताता है कि इसमें हुआ क्या, उसको एक्सप्लेन करता है ना, that there is a moment when you leave your brother's wings, leave behind the nest or whatever. So I thought that was very well written. Are there any dialogues पहले that stand out for you guys? नेहरू के उसमें वो करता है, नेहरू की स्पीच पैराफ्रेज करता है, फिर उसके बाद हिंदी में समझाता है। In the सर्च नहीं करी आपने ढंग से, एज अ होस्ट you should be, slightly more. wow. मेरा फेवरेट डायलॉग है पूरी उसमें से कि कसम खाई है निभानी पड़ेगी, इमरती बनी है खानी पड़ेगी। ये जब वो होस्टिंग कर रहा होता है अपने नेता वाले उसमें। क्रिकेट शो में। प्रणीत, एनी डायलॉग्स दैट स्टैंड आउट फॉर यू? यार मुझे डायलॉग तो एग्जैक्टली याद नहीं है, और जबकि मैंने आज ही बिंज वॉच किया, लेकिन मुझे वो उसके डैडी की स्किल्स अच्छे लगे कि वो उसका बाप रहता है ना, हमेशा शो ऑफ करते रहता है कि यार वो औरत तो मुझे भाव देती थी, कोई ना कोई औरत उसको भाव देती थी, ये सब वो बोलता है, और फिर उसकी बीवी उसको लुक देती है कि अच्छा बेटा, हाँ इधर तो तुम्हारा हो नहीं रहा, उधर तुम बहुत कर रहे हो। तो वो मेरे को बैंटर बहुत अच्छा लगा। उसका बाप फ्लर्ट बड़ा अच्छा करता है, मतलब मैं भी शर्मा जाता था थोड़ा जब भी चाय बड़ी अच्छी बनाई यहाँ पे सब। Jameen Khan is the actor. Ritu, any dialogues that stand out for you? वो उस टाइम बेटा को बोलता है ना कि हम कमिटमेंट कर चुके हैं। हमने ना बेटा मुनिसिपल जो सकल मुनिसिपल जैसी हो तो सलमान के डायलॉग मिला करती। हाँ, and he looks and the way they have shot it also ना, उसके मुंह पे कैमरा है 2 मिनट के लिए, जब वो ऐसा बोलते हैं कि उस मतलब ऐसा लगता है कि उसने इम्प्रोव में वो लाइन बोली है, तो उसके मुंह पे से क्लियर डिसअपॉइंटमेंट निकल रहा है कि मतलब ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। दैट्स अ वेरी नाइस मोमेंट। तुम में से कोई तहरी खाई है क्या किसी ने इससे पहले? मैंने तो सुना पहली बार। मेरे को मतलब समझ में तो ये आया कि खिचड़ी जैसी है, बस उसमें आलू भी मिला देते हैं। वैसे ही लगा। मैंने खाई है। वैसी ही रहती है क्या दाल खिचड़ी की तरह? It's just plain rice which is a bit sweet with potato and yellow. Why is it sweet? उसमें चीनी डलता है? थोड़ा गुड़ डलता होगा। अब पता नहीं, but it's sweet. Like वो गुड़ से बना है कि चीनी से, वो पूरा। Depends on, chef to chef. If you guys are game for it, then we will do an episodic analysis, sort of, not analysis, but we'll just discuss the episodes. I've written down the names, so I think the moment you hear the name, you will be able to recall the storylines, and we can just talk about whatever we liked or disliked in that episode. Yeah. Tehri to I think वो तो सबको एकदम clear याद होगी. So any moments or anything that stands out or anything you did not like also about that episode? Because Tehri is the episode that actually keeps you hooked for the rest of the show. मतलब the moment you watch Tehri, you start feeling कि हाँ इसमें कुछ तो ऐसी बात है कि it's relatable, or you stay back for the rest of the show. Because I feel nowadays, I don't know about you guys, but for me it happens that when I'm watching something, बीच में I lose interest.
Like middle of the episode, I start checking my phone or something like that. But for this show, it never happened even once. Like I watched everything very But consciously I and have one very poignant doubt. yes, What if you're watching the series on your phone? Then I don't watch anything on the phone. But thanks for that question. मतलब I watch Instagram not series phone पे कोई क्यों देखेगा मतलब देखते होंगे लोग obviously but I जब तुम prefer ओपन a माइक से bigger दुखी आ screen. रहे हो वापस, तो क्या नहीं कहाँ तुम से आ रहे हो? ओपन माइक से दुखी आ रहे हो ऑटो मेरा में बैठ के, तो वोडाफोन का उसको बुला रहे नेटवर्क है आधा टाइम तो कॉल नहीं आ रहा सीरीज कहाँ से आने वाला है यार ट्रेन में बहुत सारे लोग फोन पे ही देखते हैं और एक डाउनलोड का फीचर भी आता है ऐप में, तो वो यूज कर लेते थैंक्स हैं वो लोग। गाइस फॉर पॉइंटिंग दैट आउट और वोडाफोन मैं के ओपन नेटवर्क माइक को से ब्लेम दुखी नहीं करते आती मेरे को कोई अपना शो बुरा नहीं लगता ओ मैं तो मुझे तो खुशी हुई ना मैं बाकी लोग हंसे ना हंसे माँ चुदाए ग्रेट अब इसको एडिट करना पड़ेगा अच्छा, एक्चुअली एक मेरा अपना पॉजिटिव एक पॉजिटिव चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि शो में कोई ऐसा मेजर क्लिफ हैंगर हुक कोई स्टोरी इसके साथ क्या होगा ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने डाला है, बट तब भी ये बहुत बिंज वॉच फ्रेंडली है। जैसे तांडव जो बहन मतलब हम करने वाले थे, उसमें नकली की कौन मर गया कि आप देख लीजिए जानिए अगले एपिसोड में, वो सब कोई ट्रिक इसमें यूज नहीं करी हुई है, बट तब भी इसमें ज्यादा मन करता है देखने का। तुम्हें डिड यू गाइस थिंक कि उसको मिलेगा गैस एजेंसी का ये कि पहले ही लग गया था कि ये नहीं मिलने वाला है? मुझे लगा था दोनों में से एक चीज होगी कि वो छोटे भाई की एग्जाम में लग जाएगी और इसको मिल जाएगा, या फिर इसको नहीं मिलेगा और वो एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा। लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे वही लग रही थी, इसको मिल जाएगा और एग्जाम में उसकी लग जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया। या वो सेम हमेशा फॉर मी हमेशा बहुत अच्छा मिसडायरेक्ट करता है यार वो टीवीएफ। पहले में भी लग रहा था कि इसका एसएसबी तो क्लियर हो ही जाएगा, या क्योंकि या सीरीज फिनाले तो पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे, कम ऑन गाइस, ये तो ऐसा नहीं कर सकते। तो डिड यू थिंक ऑफ द ये और लाइक वो एंड में क्या होगा? हाँ नहीं, मैं एक्चुअली क्रिएटर पे छोड़ देता हूँ। bringing all of us down with one blow but okay next episode हम दो हमारे दो जिसमें उन दोनों भाइयों का झगड़ा होता है और माँ यार वो वहां मैं- जाती है वो रामायण का पाठ अटेंड करने। यार मेरे को तो वो बहुत ही रिलेटेबल लगा, क्योंकि वही मेरा बड़ा भाई है और बचपन में ऐसे ही होता था। मॉम जब भी जाती थी कुछ मार्केट वार्केट, हम लोग का लफड़ा, और टीवी पे तो बहुत ही होता था कि उसको एक देखना है हमें एक देखना है, और तो मैं देख रहा हूँ तो मैं ऐसा हो गया कि हाँ अभी लफड़ा हो रहा है ये लोगों का। लेकिन जब उनकी मॉम आ जाती है दोनों अपने काम में लग जाते हैं, और मैं ऐसा था कि fuck, ये तो सेम होता था। मतलब जैसे ही हमें पता रहता अभी मम्मी आ रही है या फिर बेल बज गया, तो हम लोग ऐसे हो जाते थे। वो मारता था मेरे को और वो ऐसा था अभी चुप हो जा, मैं तेरे को जो चाहिए दे दूंगा, तू पहले बैटिंग कर लेना, सब सब सब, और मैं सारी चीजें ले लेता था, फिर मैं चुप बैठता था। तो मेरे लिए तो बहुत ही रिलेटेबल था वो एपिसोड। I even for me like in the sense कि when we were small and my mom used to we used to watch the TV और फिर मॉम आने के 10-15 मिनट पहले हम टीवी बंद करते थे क्योंकि मॉम मेरी क्या करती थी आके टीवी पे हाथ रखती थी गरम है कि नहीं check गरम है कि नहीं देखने के लिए। भाई उसका एक नया उन्होंने इजाद करा था कि वो टीवी पे जो वो नहीं होता स्टैटिक रह जाता है, तो वो छू के देखते थे कि इमीडिएटली बंद करी हुई होती थी, आवाज आता था। तो फिर वो पहले थैंक गॉड स्टैटिक मेरी पोंछ मॉम के को ये जाना वाला पड़ता नहीं था। पता था। तो मैंने अपने भाई को ये वाली चीज सिखाई थी कि कैसे चप्पल उतार के हील ऊपर करके भागो तो आवाज नहीं आती है, वरना उनको सुनाई दे जाता था कि ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर भागे, अभी टीवी देख रहे थे नीचे। तो टीवी साफ करना होता था, चप्पल उतार के भागना होता, फिर धीरे से कौन है करके चिल्लाती थी। Ritabrata, you had very liberal parents or what who were letting you watch TV all the time? Oh yeah, like even I and my sister used to hide and watch TV. But the other thing that I and my sister did once, where we were caught massively, is when the heating problem we tried to solve it. गीला कपड़ा से कर दिया था ताकि वो ठीक हो जाए, मतलब फिर जुक जुक करके तो आवाज हुआ, फिर थोड़ा धुआं हम लोग तब तक घूमे, फिर पापा आया तो कुछ देखने के लिए चालू किया, तो तब जुक करके कुछ आवाज आया, धुआं धुआं, फिर लग गया हम लोग।
दिस इज आइकॉनिक. ये आई थिंक मुझे एडिट इसका तुम अच्छा सेट बना सकते हो वैसे. अरे नहीं. Itwar, the third episode in season 1 is called Itwar. I thought overall हाँ it's in that episode जहाँ पे वो लोग बोलते वो मशीन खराब हो जाती है, फिर हस्बैंड वाइफ का Monday. झगड़ा होता है. I thought the झगड़ा part was very like ये वाला झगड़ा हमारा होता है, like माँ बाप का, हमारा मतलब माँ बाप का. इसमें ये वही है जिसमें वो उसको बोल देता है कि तुम्हें रिजेक्ट कर Rejected रखा था हाँ, उसने, rejected क्यों हुए माँ. थी तुम्हारे सर में. Though I can't imagine कि मेरे पापा ये बोलने के बाद घर में ही रह रहे हैं. बट पता है मेरे को भी अगेन फ्रॉम मेल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लगा ऐसा भी क्या बोल दिया जो इतना ओवर रिएक्ट कर रही है वो. I will refrain from commenting because I'm trying to be friendly. हाँ. यार मुझे लगा कि ज्यादा बोल दिया उसने. मैं तो ये सोच रहा था कि फक ये बोल दिया, मतलब बीवी छोड़ गर्लफ्रेंड को भी बोल दिया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे कि ऐसा बोल दिया, फिर कितना मनाना पड़ेगा. तो मैं तो ऐसी लाइन बोलूं ही ना कभी. नहीं बट वो बैंटर नहीं तो चल रहा था ना प्रत्याशा. डोंट रिफ्रेन फ्रॉम ऐसा भी क्या ही लड़ाई हो जाएगी. हाँ बता चल. हाँ बता ना. No, it's see how can I comment upon? But see, I think it's not about the juwe wala thing. It's more about calling her rejected mal, na. So you're sort of evoking that feeling of like you know when you lose something, you have that feeling of low. So you're just again evoking क्या बोलते पुराने जख्म Neglected. रोजना kind of a बोल thing. रहे कि I would expect a better reply, right? कि अरे तो फिर तुम मेरे साथ हाँ अरे हाँ क्या what मेरे am I साथ going क्या there? कर रहे हो? What are you doing with me? You had no other option, right? See that, जैसे अगर कोई but मेरे को बोल दे कि Factor. रिजेक्टेड मान लो और फिर मैं बताऊं किसी को और मैंने तुम्हें भी रिजेक्ट करा था तो इमेजिन हाउ रिजेक्टेड यू आर. तो फिर वो बढ़ता जाएगा ना. लेकिन एक्चुअली एक मैच्योर रिलेशनशिप में तुम ऐसे इमेजिन नहीं करोगे जैसे हम 8th स्टैंडर्ड लॉजिक लगा रहे हैं. रोस्ट हो Chirag, जाएगा you वो. said it yourself. हाँ हाँ. उस एपिसोड में और क्या होता है? बच्चों के साथ भी कुछ होता है ना. लाइक आई रिमेम्बर बोथ ऑफ देम का फाइट एंड देयर इज समथिंग एल्स दैट यार ये हैपेंस. एपिसोड में वो उसको जल्दी उठना पड़ता है तो वो भड़क गई रहती है ऑलरेडी. हाँ, और उसके बाद ये सब पराठे बनाने होते हैं हाँ. हाँ और बाप पराठे बना देते हैं फिर. एक्चुअली अच्छा ही झगड़े का तो अच्छा ही आउटकम हुआ. बत्ती आ गई में दे इन्वर्टर inverter yeah, and finally he buys the scooty in that. हम्म. So any relatability, any observations, anything on बत्ती आ गई? यार ये तो उसमें हम पहले जब बत्ती जाती थी तो फिर ऊपर छत पे बैठ जाते थे. ये सारी चीजें तो कॉमन ही थी. बट वो जो ऐसे फादर सन बॉन्डिंग नहीं होती कि स्कूटर लेते नहीं बाइक ही लेते हैं सीधे, जिसमें मतलब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे पापा भी थे तो लौंडे ही पहले. तो वो वाला पोर्शन अच्छा था. That's sweet, yeah. That's something I can't relate to obviously. यार मैं तो चिराग के ये सब चीजों से रिलेट ही नहीं कर सकता जो वो बोल रहा है ना. पहले भी उसने बोला कि सीढ़ियां चढ़ के हम टीवी बंद करके ऊपर जाते थे. अभी बोल रहा लाइट अभी ऊपर. अबे हम मुंबई में रहते हैं, जगह ही नहीं है. लाइट गई तो हम घर से नीचे चले जाते हैं. हाँ तो लेकिन वो पार्ट रिलेटेबल था. जब ऐसा होता है ना वो ऑफिस से उसको कॉल आता नहीं, वो ऑफिस में कॉल करता है और वो बंदी से बात Oh yeah, that part is relatable. लाइट क्यों गई है और फिर उसकी माँ चालू हो जाती है ना. अच्छा इसलिए बुलेट लेनी है, उसको इम्प्रेस करना है, एविएटर पहनना है तुम्हें. हाँ. And the final episode of season 1 त्योहार फेस्टिवल जिसमें वो बुआ आती है. वो आती है और फेल हो जाता है अनु फेल हो जाता है. या has this have you ever though none of you look like you ever failed. मैं तो फेल हुई हूँ. अरे मैं तो हूँ बट कॉलेज में हुआ तो तब थोड़े बड़े हो गए थे. स्कूल में फेलियर आई थिंक ज्यादा चुभता है. कॉलेज में तो ऐसा लगता है कि कम से कम मैं मम्मी ड्रग्स तो नहीं करता हूँ बाकी. मैं तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा रिलेटेबल एपिसोड था. मैं तो स्कूल में इतना मतलब इतनी गंदगी मचाई है मैंने.
मेरी माँ के 2 बाल सफेद तो तभी हुए थे। तो बट तेरे पेरेंट्स रिएक्ट कैसे करते थे उस टाइम पे जब तू फेल होती थी? My actually the reaction was pretty apt. इतने मतलब ये नहीं हो जाते, मेरे डैड तो ज्यादा ये नहीं करते, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते थे, बट मेरी मॉम थोड़ी देर तक गाली वाली देने के बाद थोड़ी देर में अच्छा चलो ठीक है खाना खा लो, हो जाओ, ऐसे टाइप का हो जाता था। तो एक्चुअली ये शो में भी और इन जनरल लाइफ में भी मेरे को फैमिली वाली लड़ाई में ये चीज अच्छी लगती है कि ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, कि दोपहर को लड़ाई हुई है शाम तक रिजॉल्व हो जाएगा, एज अपोज टू रिलेशनशिप वाली लड़ाई जिसमें 3 हफ्ते तक बात ही नहीं हो रही, पता चला चीट कर लिया, सुनने में आ रहा है ये सारी चीजें, तो उस कंपैरिजन में 4 ये घंटे की डेड एंड लड़ाई को तो भेज दूंगी कॉमेडियन के प्राइवेट लाइफ का गॉसिप। देखो, तो कंट्रास्ट ड्रॉ करने के लिए भी तो बोल रहा हूँ ना, बट मैं सच ही बोल रहा हूँ सब। नहीं मजाक कर रही हूँ। हाँ ऋतुब्रत एनी ये हैव यू एवर फेल्ड ऋतुब्रत? यू सीम लाइक No, I was very clever actually in my head. I just passed, but according to me, I was like I rocked it because देखो हम लोग का ये मैं बहुत जन को बोला भी हुई है कि देखो पासिंग मार्क्स बोल देता है कि 32 में पास है, तो वो 90 के लिए कौन पड़ेगा? तो मैं तो अटेम्प्ट ही 40 करता था, तो अगर 40 में से 32 का ऊपर मिल जाता तो मैं बहुत प्राउड होता था, पर 32 के नीचे नहीं आया है, ये मतलब मैं मेंटेन किया। तुम सुनील कॉलेज में भी कभी फेल नहीं हुए? नहीं वैसे मतलब कॉलेज में तो मैं मतलब टॉप किया था क्योंकि मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट आ गया था ना। what was your subject? What is this subject? It is mass comm and filmmaking. Oh, okay. Yeah, I know. You are a budding director. Yes, I remember that. Firing direct. होने वाले सत्यजीत रे। सुनील माली ब्लॉग is saying Praneet. That's it. ओह हाँ, वो मतलब मेरा दोस्त है। दोस्त ही है ना? ओके मुझे लगा स्टॉकर है। अरे ठीक है, गुड। I don't know how to respond to that. Do you have any response for your friend Praneet? But that is it. Those are all the comments. Yeah, there is best stream. Bantida is the best. And hello and Praneet. Yes. I वाह, mean, अभी मुझे प्राउड फील हो रहा है। season 2 first episode बिजली का बिल। बिजली का बिल में I was very surprised to see him in the temple. मेरे को वो नहीं समझ में आया एक्चुअली कि वो मंदिर में क्या कर रहा था अन्नू। That was a contrast to the political thing, right? कि वो पॉलिटिक्स भी कर रहा था उस टाइम पे, ये दिखाया ना कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है। राइट पर वो मंदिर का क्या लेना देना, मतलब वो वहां से शुरू हो रहा है? इज इट दैट लाइक आई डिडंट गेट समझ में, बस टाइम पास करने जाता है वहां पे उसके दोस्त के साथ, वो पेड़ के जो नीचे बैठता है, लोग आते हैं उससे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो मेन पार्ट है। मंदिर तो बस जस्ट हैपेंस टू बी देयर, अड्डा टाइप लगा मुझे तो। हाँ ओके। मेरे को तो थोड़ा पॉलिटिकल मैसेज लगा, तो आई थॉट दैट मंदिर वाज अ साइन। वो कनेक्शन जो बाद में देखा। चैनल में 4 सब्सक्राइबर आने दो, तुम मंदिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। ऐसे तो वो भी एक बीच में लाइन छोड़ते हैं ना कि मोदी जी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या वो थे, बैटिंग करते कहते नहीं, वो तो फील्डिंग करते थे, तो मुझे लगा कि ये हो सकता है इसमें कुछ सब टेक्स्ट हो, बट क्या है एग्जैक्टली बिट्टू की मम्मी के साथ ना, ये वाला बिट्टू की मम्मी के साथ। हाँ। वो तो अब पॉलिटिक्स करते हैं शाहिद अफरीदी के लिए, ही डज नो दैट। चीनी कम पानी ज्यादा, द किटी पार्टी, द क्लासिक again thought that kitty party. yeah, again I thought the mother overreacted, both like all three of them did cook the entire meal like yeah, a this feast time I agree with you, this time I for 10 people। का पॉइंट क्या था मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, वो उन्होंने पूछा ही तो कि मिक्सी क्यों मंगाया, ऐसे थोड़ी कि ओए हिम्मत कैसे हुई घर में मिक्सी ऐसे थोड़ी बोला था, बस ये तो पूछा कि ओ मिक्सी हाउ कम, यही तो ऐसे बात करी थी। एक्चुअली उन्होंने विलन बना दिया औरत को थोड़ा, कि एटलीस्ट उनको थोड़ा कुछ ऐसा फालतू बोलने देते, फिर वो रिएक्ट करती तो चल जाता। अब वो कुछ बोल नहीं रहे, सीधा वो उनकी माँ रिएक्ट करी, ऐसा लगा। Yeah, and also like that whole dissatisfied expression, मतलब ये लोग दही वड़ा जैसे भी सही वो लोग बोल रहे थे, and they were showing that women are only like bitching about like उसका पति वहीं पे, अगर पति वहां पे खड़ा है तो फिर क्यों bitching करेंगी? थोड़ा सा दूर जाने के बाद करेंगी ना, मतलब ऐसा मुझे लगा, एटलीस्ट मैं तो वैसे ही करती, मैं दूर जाने के बाद। बिचिंग इनकंसिस्टेंट लगी, मुझे बिचिंग इनकंसिस्टेंट लगी। हाँ
इसमें वो वो तो वाला है, वो 500 रुपए वाला जोक है वहाँ पे कस्टर्ड हम्म। प्लस कोल्ड ड्रिंक पिलाए थे, वो तो बहुत ही चोदू थे। पड़ जाती है लेकिन वो लोग की तभी वो अच्छा but दिखाया था कि doesn't but जब that happens for anything na. I think it would ये be true मिक्सी का the जो other सीन way था, around also. लास्ट में मिक्सी का जो सीन था, उसका तो मतलब भनक भी नहीं लगा ना कि मिक्सी का कोई कमी है घर में। पहला मतलब हाँ नहीं वो सिलवट्टा बोलते हैं बिगिनिंग में कि सिलवट्टा दिखाया था, सिलवट्टे से सिलवट्टा, चटनी या बना रही थी। हाँ 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 लेकिन वो ऑर्डर कर रही है वो भी, हाँ वो दिखाया था वो मतलब टेरेस तो पे हो बैठ गया था, तब दिखाया था कि हाँ, अमेज़न खोला था। मेरे को लगा कोई ब्रांड इंटीग्रेशन ऐसा। नहीं बट अमेज़न लिख के नहीं आया था। मतलब कोई साइट पे रहती है वो ऐप पे। हाँ ये टीवीएफ का ये वाला शो वाज नॉट ओपन टू ब्रांड इंटीग्रेशन। RJ Praneeth is one side in Mumbai. A very किसने curious लिखा है? comment for RJ Praneeth. क्या लिखा है, किसने लिखा है ये? अंकुर शर्मा ने लिखा है RJ Praneeth is one side in Mumbai. एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे फैंस कमेंट कर रहे हैं ना, उसके बाद स्ट्रीम पे ऑकवर्ड साइलेंस आ रहे हैं तो वो नहीं पढ़ना चाहिए तुम्हें। नहीं क्यों नहीं। दिस एपिसोड वाज चीनी कम पानी ज्यादा। इसमें दिस वीव डन राइट। द नेक्स्ट वन इज सपरिवार, जहाँ पे वो रितु दीदी की शादी है एंड ईगो आउट हो जाता है। हाँ एंड वो फैमिली, वो मुझे आई थॉट दैट वाज अ वेरी नाइस वे ऑफ। मुझे पहले लग रहा था कि ये लोग शादी वादी दिखाएंगे, but the way they showed the whole बदला thing और वो register निकाला। Do they keep register in your ये कि किसने क्या गिफ्ट मतलब पहले रखते थे। रखते हैं right? Like do you guys, are you guys aware that you know they keep a log of gifts? चिराग, हम you seem very ग्रज रखते हैं बिल्कुल, लेकिन रजिस्टर नहीं। रजिस्टर इसलिए नहीं रखते क्योंकि याद रहता है कि इसने साले ने एक बस बनियान दी थी हमारे बर्थडे पे, तो इसको तो हम कुछ भी नहीं देंगे, या ये सेकंड हैंड गिफ्ट देते हैं। एक्चुअली मेरे ना पेरेंट्स वो हैं, डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग को बहुत सारे वो मिलते थे जब बचपन में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं गिफ्ट देते हैं, तो उसमें हमेशा दवाई का नाम लिखा होता है। तो द वर्स्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू समवन एल्स जिस पे दवाई का नाम लिखा हुआ हो, तो तुम्हें पता चल जाता है ये तुमने खरीदा नहीं है, तुमने एमआर देखा। हाँ तो वो अगर कोई देता था तो फिर वो याद रखा जाता था कि तुम्हें बताते हैं बेटा कुछ भी नहीं आएगा दिवाली पे इस बार तुम्हारे घर। Aditya Vrata, does this happen in Cal also? Like, do people keep a log, or nobody gives you anything? No, they do give, but they at least give a flower. So मतलब नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हम लोग के इधर पे लॉग रखने का। I think रखते तो सब लोग, याद तो सभी रखते हैं। याद तो सभी रखते हैं। I don't think ये वो मतलब ऐसे ही अच्छा बन रहा है, कोई इतना अच्छा नहीं होता। हम लोग के इधर पे ऐसा भी फंक्शन होते हैं जहाँ पे लिखा रहता है कि डोंट ब्रिंग गिफ्ट्स, but those are the ones you have to bring gifts in actually. हाँ उसमें फिर कैश देना होता है लिफाफे में। हाँ अरे नहीं, इधर पे मना कर देते हैं। नहीं होता है, तुम कुछ भी बोलते हो, तुमको बुला ले रहे हैं सही फंक्शन। पता नहीं इधर का हम लोग का कितना एक्चुअली हाँ कोलकाता थोड़ा कूल है ये सब मामलों में, मतलब थोड़ा आगे है बाकी सिटीज से मेरे ख्याल से, तो जितना मैंने सुना है देखा। या तो हो सकता है देखो ऋतु प्रथा, तुमने कंसिस्टेंटली सब जगह इतने खराब गिफ्ट्स दिए कि उन्होंने तुम्हें बोल दिया है we would rather get no gifts from you. Mystery solved. तो उनमें सेंस नहीं है, तो मैं वैसे भी किसी को आज तक गिफ्ट नहीं दिया। ये रिलेशनशिप में तो तुम कुछ कहीं बाहर रिश्तेदार छोड़ो, रिलेशनशिप में तो तुम करते ही हो कि मेरे को मेरे बर्थडे पे ऐसा गिफ्ट मिला था तो मैं इक्वल और हायर वैल्यू का बोल दिया था। एक बार बोल दिया था। क्या दिया था? ड्यूस बॉल। Rizabha, can you come a little closer? Your audio is a little ये। हाँ, better. Yeah. मैं बोल रहा कि मैं ड्यूस बॉल दिया था, ड्यूस बॉल। ड्यूस बॉल क्या होता है? अरे बैट एंड बॉल, क्रिकेट का बॉल, ड्यूस बॉल, रेड कलर का लेदर का। वो किसको दिया था? लेकिन ड्यूस बॉल होता है गर्लफ्रेंड को दिया था इसने। वो क्रिकेट खेलती थी या तूने ऐसे ही नहीं, मेरे को अच्छा लगता था ना। मिताली राज को डेट कर रहा था ये। अरे यार इसीलिए नहीं कोई गिफ्ट नहीं ले रहा तेरे से। और तुमको क्या मिला था बर्थडे पे भी? बैट। नहीं मैं अरे फिर ब्रेकअप हो गया। बॉल के बाद तो ब्रेकअप हो गया ही। चिराग, you were saying something, sorry.
You were saying नहीं something. मतलब Trishul. यही बात चीज कर रहा था एक बारी मैं 11th में एक मतलब नया नया वैसे प्यार हुआ था, किसी को डेट करना स्टार्ट किया था, तो मैं जब पैसे वैसे वो करके मैं ऐसे बोल रहा था जमा क्या कैसे कि मैं खुद कमा रहा था, घर से पैसे मंगाए थे और उसको मैंने बोल दिया था कहीं घुस हो गए, और फिर एक टी शर्ट खरीद के लाया था, और मेरा बर्थडे पहले पड़ता था उससे थोड़े दिन पहले, तो मेरे बर्थडे पे कुछ नहीं आया था, तो मैं सोचा था यार मैं ही पहन लेता हूँ ये भैंचो, बट वो उसका लेडीज वाला कट था टी शर्ट का, तो फिर मैंने इवेंचुअली उसे दे दिया था, और फिर उसने वही सेम वैल्यू का एग्जैक्टली मैंने फिर ऑनलाइन जाके चेक करा था, सेम वैल्यू का टी शर्ट मुझे वापस मतलब गिफ्ट कर दिया था इमीडिएटली, क्योंकि वो भी मेंटेन करती थी। Wow, तू this कितना was polite है that यार was your तेरा। soulmate actually, gifting soul. कैसे चल रहा है स्ट्रीम मेरा? पर ये सब रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, तो इट डजंट मैटर, इट्स फाइन। मैं आगे का Actually, सोच रही हूँ। क्या गिफ्ट, तेरा वी वर सीन क्या है डिस्कसिंग इंटरनेट का? गिफ्ट्स। सॉरी तेरे इंटरनेट का सीन क्या है ऐसा? यू नो आज तक इतना खराब स्ट्रीम पे हुआ नहीं है, पता नहीं आज कुछ ज्यादा ही मनुष्य ये तू हर स्ट्रीम में बोलती है, नहीं मैंने नहीं check किया बिल्कुल है। नहीं, ऋतु प्रथा हैज कम प्रीवियसली। yes. यस, ही इज माय एविडेंस। तो वो ठीक है। वो एपिसोड का एंडिंग वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, ऐसा लगा नहीं था कि वो तीनों ही वो मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे और कोई जाएगा नहीं शादी में, है ना? मेरे को मतलब थोड़ा वियर्ड ही लगा फोर्थ का एंडिंग। हाँ मेरे को तो हाँ थोड़ा एपिसोड थोड़ा वियर्ड ही था एक्चुअली। मतलब फिर उसका पापा क्यों गया ना, उसी को नहीं। और वो बीच में खुश हो जाता है जब वो उसको समझ जाता है ना कि उसने इंटेंशनली किया उसके मामा ने, तो तब उसका बाप खुश हो जाता है, उसके बाद वो सीरियस भी हो जाता है कि अरे नहीं तुम भी चलो, पर वो मेरे को समझा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे वो और मेरे को एक्चुअली मुझे वो एपिसोड वियर्ड नहीं लगा, बिकॉज I thought that was like emotionally I'm speaking, like not from a rational point of view, like emotionally I thought it was a real reaction. Because they were very much attached to the event, and the moment they found out that they were only being called, and ये तो होता ही है कि किसी एक इंसान को जाना है तो जिसका नाम लिखा है वही जाएगा, so वो तो मतलब like from a emotional space I could relate to what they were saying. Rationally I understand what you guys are saying, that it doesn't make sense, but emotionally I think it makes sense. Like I would react like that. I'm like that way very emotional, so I can understand maybe. I like the gift discussion. What is what is the weirdest gift any of you have received? Relationship, family, जो भी, शादी, तो दूसरों को बॉल देता है। मेरे को बॉक्सर्स मिले, वो सीक्रेट सैंटा ने दिया था, और पता नहीं उसने वो हमारे ऑफिस में वैसा था कि तुम एक एक गिफ्ट देते हो और टास्क लिखते हो, तो उसने लिखा था कि बॉक्सर्स दिए थे और लिखा था कि इसके साथ फोटो निकाल के ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल तो नेक्स्ट गिफ्ट मिलेगा। मैंने बोला नहीं चाहिए फिर नेक्स्ट गिफ्ट मुझे। इसमें मैं कुछ भी रिएक्ट करूंगी तो इनअप्रोप्रिएट होगा, अगर किसी और को रिएक्ट करना है तो कर सकते। चिराग ऋतु तो एनी वियर्ड गिफ्ट्स? नहीं वियर्ड कुछ गिफ्ट नहीं। मतलब मेरा एक दो दोस्त क्या करते हैं कि मतलब बर्थडे पे वो लोग गांजा स्कोर करके दे देते हैं थोड़ा। और एडिट कुछ एडिट नहीं होने वाला, भाड़ में जाए, ऐसे 400 ही तो सब्सक्राइबर्स है, देखना है देखे, नहीं देखना है नहीं देखे। चिराग एनी वियर्ड गिफ्ट नहीं था, लेकिन वही जो जिसका मैं बता रहा हूँ ना टी शर्ट वाला, तो एक्चुअली ऐसा था कि मेरा बर्थडे मतलब मई में कभी होता था और इस लड़की का बर्थडे 5 दिन बाद होता था, तो मेरे बर्थडे से 2 हफ्ते पहले वो ऐसे बताती थी कि मैं आज बाहर गई, तेरे लिए शॉपिंग करके आई, और रोज बोलती थी कि रोज बाहर गई, रोज शॉपिंग करके आई। मैं सोचता भाई तो लैपटॉप ही दे देगी यार, क्या देने वाली, मतलब अगर मिनिमम 1000 का भी इसने खर्चा करा है तो अभी तक 50,000 का तो नेट वर्थ हो चुका है गिफ्ट का, और मेरे बर्थडे पे आया कुछ नहीं साला। और फिर उसके बाद जब वापस मैंने वो करा तो जैसे वो रेट्रोस्पेक्ट में जो टैक्स भरते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडवांस टैक्स तो नहीं, लेकिन मतलब मेरे पिछले साल का टैक्स में कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया तो फिर उसको करेक्टिव टैक्स एक मैं भरता हूँ, फाइन। तो वो फाइन, आई एम श्योर इट्स नॉट फाइन, लेकिन थोड़ा अच्छा
फैंसी सा वर्ड होता है। हाँ, उसने वो फाइन के तौर पे मेरे को एक वो टी शर्ट दे दिया था। वाह अच्छा मेरे को सही में लाइक आई रियली नीड टू आस्क दिस, हाउ डू यू नो व्हाट द अदर पर्सन माइट लाइक? एग्जैक्टली मतलब या Whatever मैंने you पूछा था think- लाइक द रीजन फॉर मी टू गिव अ बॉल इज बिकॉज़ मैं जब पूछा था कि क्या चाहिए, वो क्लियर कट क्वेश्चन है ना कि क्या चाहिए। मुझे लगता है अगर वो लड़की किसी स्ट्रीम पे रहेगी ना और उसको किसने पूछा वियर्डेस्ट गिफ्ट क्या मिला है, तो वो तेरा बताएगी। एक Exactly, लड़का वो है, चीज हाँ, actually कहता काफी funny बैट है। बॉल ले दिया, उसको पसंद था उसने दे दिया मेरे को। तो मेरे को बोला कि तुम्हें जो पसंद है वही दो। तो मेरे को लगा तो मेरे को लगा कि शायद ये पसंद आ जाएगा। वाह बट यही समझ में आया जो सामने वाले का ईगो मसाज करे, कि अगर जैसे हम अपने आप को कॉमिक्स मानते हैं, तो अगर हमारे को कोई ऐसा कुछ दे दे कि ये लो आप एक अलग माइक स्टैंड ले लो या कुछ और ऐसा ले लो, या हाउ टू राइट जोक। हाँ नहीं मतलब जो विच एक्नॉलेजेस कि हाँ हाँ हम ये लोग लेजेंड उससे कर रहे हैं, ऐसा टाइप का कोई, वही ठीक गिफ्ट होता है आई थिंक। यार प्रत्युषा तू बता ना, तू क्या सोचती है अगर किसी को गिफ्ट देना रहेगा, तू क्या सोच के देती है? व्हाट इज द weirdest gift you have received? हाँ वो भी बता। हाँ I am a very selfish person. मैं लोगों को बता देती हूँ कि मुझे ये चाहिए, मैं किसी के ऊपर छोड़ती नहीं कि तुम अपने आप से सोच के दे दो, वरना फिर मुझे झगड़ा वगड़ा करना पड़ेगा, कौन इतना एनर्जी डाले। रादर मैं दे देती हूँ कि तुम्हारा बजट क्या है, और मैं उस हिसाब से 3-4 ऑप्शन दे देती हूँ कि तुम अपने अपनी आप, क्योंकि Amazon मुझे वाली पता है को मैं किसको डेट कर रही हूँ, ठीक है, उसकी क्या वाह। हैसियत है एग्जैक्टली, तो उसको मैं सोचने दे दूंगी ना, तो फिर हो ही गया। टाइम से तो स्क्रीन तुमसे पे कॉल किया जाता नहीं है, मैसेज का रिप्लाई आता नहीं अरे है, तुम अरे और अरे जल्दी गिफ्ट अरे खरीदते हो। रैंट, इसको सवाल पूछा रैंट कर रही है। स्ट्रीम से पहले प्रत्याशा ने बोला था वो गोल्ड डिगर है, और अभी ये आंसर आया। Don't spread these rumors, Praneeth. It's not true. Amazon पे जो विश लिस्ट होता है ना उसको पब्लिक करके रख सकते हैं, तो वो मैंने बहुत साल तक करा था, होपिंग कि somebody would notice कि भाई मेरे को ये सब सामान चाहिए, it is out there in the public, but अब वो प्राइवेट कर लिया मैंने वहाँ पे। But I have realized that either you ask people most and ask them nicely, they mostly answer, or you give them something expensive. नहीं वो एक्सपेंसिव पे Because भी वो तुरंत तुम भूल exchange भी हो जाएगा, मुझे मतलब I don't feel bad if somebody exchanges or यार something. एक्सपेंसिव में वही प्रॉब्लम है ना, फिर वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अभी जैसे हाँ। ने बोला उसका बर्थडे का 5 डे का डिफरेंस था, ठीक है। अभी मान ले तूने किसी को गिफ्ट दिया जून में और तेरा और ब्रेकअप हो गया बहन हाँ। जुलाई में, अब ये फिर क्या तो करोगे? ROI गया ना तेरा बाहर में, तो मतलब हाँ। नहीं है एक्सपेंसिव का, बिल्कुल नहीं। हैंडमेड से भाई सबसे बढ़िया कौन है? best। मैंने कुछ नहीं करा तुम्हारे लिए, ये वो तो- देखो पीछे देखो, ये देखो क्या है, टाइम किस में देखते हो तुम? तो वो चीजें, ये फ्लावर्स बेकार आइडिया। ये फ्लावर वाला कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत दिन तक समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो मेरा एक लंबा रिलेशनशिप एक चला था, ठीक है। कितना लंबा वो हमें जानना है। करीब 4 साल ऐसा 5 साल था, हाँ। पिछले स्ट्रीम में 5 साल था, कंसिस्टेंसी वही- रखो। वही कुछ। तो हाँ, उसमें क्या हुआ कि मेरे को लाइक टुवर्ड्स द एंड, लाइक और 3 महीना बाकी है। तो उस टाइम पे Horrible. हम लोग मॉर्निंग वॉक पे कहीं गया था, तो हमको ऐसा फूल वाला बैठ गया था सुबह सुबह। मेरा देख के तो मेरा पहले ऐसा दिमाग में आ गया कि हम मांगने वाली है। अरे अरे तो वही जो प्रेडिक्ट किया था सेम, दुकान के सामने खड़ा होकर बोल रहे मुझे कभी कोई फूल नहीं दिया। मैं भी एम्बरेस्ड हुआ, इतना सारा आदमी है। मैं बोला कि अरे मैं आज तक नहीं दिया, इसका मतलब क्या, मेरे को पसंद नहीं है। तो ऐसा ही थोड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ, तो मैं ऐसा दुकानदार को पैसा दे दिया और बोला भैया आप दे दो। तो दुकानदार ने दे रहा उसको है। फूल दिए। हाँ, अरे इतना रोमांटिक लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा भाई। ये मेरी माला ले ली। फिर भी 5 साल चला है उस लड़की को, मतलब कौन है ये, मोहतरमा ही है वो। बाप रे, मानना पड़ेगा। इसको फिर मैं माला पहन के घूमा। यू बॉट माला फॉर हर? नहीं फॉर हिमसेल्फ। Not surprised at all. Not at all surprising. Cool guys. Last के तुमने दो अच्छा तुमने सबसे अच्छा गिफ्ट क्या दिया है किसी को कभी?
ये बुराई तो बहुत कर ली हमने जमाने की, खुद बताओ सही। क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा बता गिफ्ट बता। मैं बताऊं? हाँ मैं बहुत अच्छे गिफ्ट देती हूँ एक्चुअली। वो नहीं ऐसा बता सबको क्या ऐसा दिया सबको हाँ, नहीं लगता नहीं, है, I'll tell सबको you. I लगता है। have gifted. It'll sound very bad, but it's. बता I have so wedding gifts normally are very special. So whenever my best friends have got married, I've given them stay like in nice places. Nice gifts. Wedding gifts normally I give nice stuff. I give gold or I give hotel stay, depending on. अरे बाप रे, सीधे भाई गोल्ड ही। नाम लिखा है ऐसे। वाह 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 मानना पड़ेगा यार I respect। love how मतलब like this is a scale ना, it's a range. Directly like hotel to cake में नाम लिखाया, like great. Chirag, what is एक the और best उनके gift you have given? अरे मैंने बहुत एफर्ट डाले यार टू गेट लेट। मैंने बहुत बहुत मेहनत करी। बता बता ये मैं ऐसा लड़की लोग को नहीं, लड़का है मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, उसके लिए मैं एक बार केक लेके गया था। वो बोला था देखो 300 रुपया है, तुम साला काम से मतलब रेंज मेंटेन करना चाहिए। मैंने एक मेरा दोस्त था, उसकी शादी पे उसे एक बिल बर की बुक है, पता है तुम्हें, मैन्स गाइड टू इनफिडेलिटी, तो वो दिया था मैंने उसको। नहीं लेकिन तू वो भी बता रहा था ना कि बाकी लड़कियों के लिए क्या मैक्स नहीं ऐसे बहुत कुछ नहीं करा है, मतलब मैं जनरली उस समय प्यार में था, तो वो सब कुछ मैंने कार्ड वर्ड, हाथ से कार्ड बहुत बनाया मैंने, जो कि मुझे बहुत रिग्रेट है उसका कि सबके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। वाह प्रत्याशा अटक Wow, चुकी है मैं मेरे एक लौता जो मेरा लॉयल सब्सक्राइबर है मोहित प्रजापति, guys please say hi to him, okay? हाय मोहित प्रजापति। हाँ, Mohit has written, "Hey guys, great stuff. But can you please announce about the live a little bit before you're going live so that we know and can plan things accordingly so we don't miss live stream." यही तो प्रॉब्लम हो गई यार। नहीं, तुम हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मोहित, मैं पूरे हफ्ते अनाउंस करती रहती हूँ प्लीज। यही तो जीवन है अब मेरा। Sorry, I cut your gift discussion in the middle. Praneeth, you are the only one. You have to tell us what is the best gift you've given. हाँ यार वही एक तो प्यार वाला ही रहता है, उधर इंसान एफर्ट डालता है। तो यार मैं जब भी डिग्री कॉलेज में था तभी मैं पोर्ट्रेट बनाता था, तो जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था यार उसने बहुत ही मेहनत करी थी मेरे बर्थडे पे, तो वही वो रिटर्न में करना पड़ता है। उसने वो टी शर्ट पे पेंट वेंट करके दिया था मेरे को, तो मैंने उसका पोर्ट्रेट बना के दिया था उसको। बहुत ही मेहनत लगी थी, 4-5 घंटे तो लगे थे बनाने में, तो लेकिन वर्थ था वो मतलब उस टाइम। तो ये वाले रिलेशनशिप चलते हैं 5 साल जिसमें यार हैंडमेड कार्ड बनाते हैं? मेरे तो 1-1.5 साल के ऊपर कभी नहीं चले, तो मुझे लगता है ऋतव्रता का स्ट्रेटेजी मुझे ट्राई करना चाहिए। Yeah, everybody Bad should be a boy. Ritavrato. Yes. उसको चले जाए, दुकान वाले को बोलो फूल देने के लिए। तुम दो फूल उसको, ठीक है मैं पैसे दूंगा तेरे को। बट ये सारी चीजें एंड की तरफ वाली बता रहा है। हाँ वो अच्छी वाली नहीं बता रहे, जो हाँ, जिसकी वजह से जो पार्टनर एक्चुअल स्ट्रेटजी यूज करी थी स्टार्टिंग। और वो जैसे बता रहा ना कि देख ये एंड का 3 महीना था, तो उसने प्लान कर लिया था अभी 3 महीने में इसको निपटाने का है, तो वैसी चीजें कर रहा था। Ripped apart, beautiful. यार मेरी एक क्या कहते हैं एक्स थी जिसने बड़े सुंदर कार्ड वार्ड बना के दिए थे मेरे को, जबकि मैंने अच्छा नहीं मैं हाँ, तो उसने ये जो मेंटेन करते हैं ना कि किसने कितना एफर्ट डाला, तो वो उसमें उसने मेरे को बहुत ही अच्छे से हराया था, तो दैट आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड। हाँ मैंने एक बार बहुत ही उसका क्या कहते हैं फेसबुक से जितनी भी फोटोज थी वो सारे निकाल के एक ब्लैक पेपर पे खूब सारे हाँ कोलाज के मतलब एक पेपर सा बना के उसको भेजा था। फिर उसके मतलब मंथली रेगुलरली जैसे सब्सक्रिप्शन लेटर होता है ना, वैसा मेरे को हमेशा भेजा करती थी कि मैंने उसको कभी बोल दिया कि यहाँ पे मेरा बोनविल खाने का मन होता है बट महंगा है या कुछ ऐसा है, तो फिर हमेशा वो कोरियर में भेजती थी विद हैंडमेड कार्ड, और मेरा भैंसो दोस्त खोल के खा लेता था और वो चॉकलेट वाला हाथ उसके कार्ड पे लग जाता था। मैं कहता यार तूने कार्ड खराब कर दिया, कहता है लेकिन अब देखना यार इसमें मेरा भी प्यार है तेरे तो अब वो मैं कार्ड जब भी देखता हूँ तो मैं हमेशा वो एक्स के बारे में और उस दोस्त के बारे में दोनों
अरे मैं तो फिर मेरा तो एक ही मतलब then I think I have a lot of attitude चाय कि अरे मैं ही तो गिफ्ट हूँ ओ अरे बाप रे इस पे मेरे पास एक वो था जोक बट आल्सो एक्चुअल कॉन्वर्सेशन कि जैसे मेरे को मेरी एक्स ने बोला था कि मैंने तेरे को इतना प्यार करा, ये करा वो करा, और तूने बदले में मुझे क्या दिया? मैं कहता था मैंने तुझे मुझे प्यार करने का मौका दिया। ये स्ट्रीम पोएट्री सेशन बन चुकी है अभी। वाह बहुत अच्छा है ये टीवीएफ इस पे अलग से एक और सीरीज बना सकता है इराक का देख जितना ले भी एक से साथ बैठ के अभी फाइल कर रहा है क्या अच्छा with ये proof। तो मेरा वाला बोल रहे हैं। अरे तुम कभी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जिसमें तुम्हें कोई गिफ्ट्स नहीं मिली, मतलब मॉन्यूमेंटल इवेंट्स निकल गए कि एनिवर्सरी निकल गई, बर्थडे निकल गया, बट तुम्हारे पास कोई गिफ्ट ही नहीं आया, तुम सोच रहे हो भैंचो ये क्या बकवास है यार। ये ऑपोजिट साइड में हुआ है मेरा दैट वी ऑल नो हमें पता है वो आया भी तो घूम के एक लेदर बॉल। यार 5 लेकिन साल ऋता बाद एक प्रथा लेदर से बॉल मिलेगा ना, मैं तो दे देते तुम्हारे लेदर बॉल फकिंग अभी कल इंडिया जीती थी, ऋता प्रथा की एक्स को इसकी याद आई रहेगी कि अरे इसने भी वही गिफ्ट दिया था। अरे नहीं मैं फिर मान लिया था क्योंकि सेम स्कूल में था तो मैं बोला था कि लाओ वापस दे दो मेरा मेरी गेंद। मैं मांगा नहीं, मैं बोला कि ऐसा सब कोई खेलेगा तो सबके लिए मेरी एक ये जो 11th वाली एक्स है, उसने एक मेरे को कार्ड दिया था जिसमें मतलब मैं साइंस में था, वो कॉमर्स में थी, और वो ऐसे बहुत धमकी वमकी देती रहती थी मेरे को कि मैं पिटवा दूंगी तेरे को और ये सब कुछ। पिटवाऊंगी क्यों? मतलब अगर झगड़ा हुआ लाइक दैट? हाँ तो ओके वो मेरे बर्थडे पे कार्ड था जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि रिमेम्बर इफ यू एवर ब्रेक माय हार्ट माय फ्रेंड्स विल ब्रेक योर नोज, आई लव यू। दिस साउंड्स लाइक प्रीति कबीर जिंटा इन सिंह। दैट मूवी और फिर वो उसने मेरे को कार्ड दिया था, और वो मेरे से 2 दिन बाद वापस मांग गया था कि तुम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो कि कितना एफर्ट गया वो कार्ड में। मतलब वो हैंडमेड कार्ड भी नहीं था, वो बस खरीदा हुआ कार्ड था, और उस पे लिख दिया था उसने ये सारी कहानियां, जिसमें ये लिखा था कि मेरे दोस्त तुम्हारी नाक तोड़ेंगे, गांड मारेंगे, ये सब कुछ। और उसने कहा था कि वापस दे दो वो कार्ड, तुम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। तो मैंने उसको वापस फिर दे दिया था, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि इसके दोस्त पिटवा देगी, तो मैं दे दिया भाई उसको। तो फिर उसके फ्रेंड्स मेरे पास वापस आए बोलने कि तुम बड़े बदतमीज हो, तुमने उसे कार्ड वापस क्यों दिया? मैं कहा भाई उसने मांगा, मेरे को धमकाया। तो उन्होंने कहा अरे तो तेरे को कुछ बोलेगी ऐसे कार्ड वापस दे तो दे देगा क्या, कि ये टेस्ट था तुम इसमें फेल कर गए हो। Oh God, what is this? How old were these children? Like, 4 years। 11th. okay, wow, this is really extreme behavior. बट But फिर उसके बाद से मेरा फिर टाइप ही ये बन गया। do you do this? But does this happen that you have taken a gift and the other person is like, उसके हाथ मतलब सामने से कुछ नहीं मिल रहा? Like, I know you said the birthday thing, but like on Valentine's and all, like, does Yeah. this happen? वैलेंटाइन में मानता ही नहीं हूँ वैलेंटाइन लाइक पेरेंट्स डे He is following मकर संक्रांति, पता नहीं क्या अलग ही अपना उसका अमृत गिरने का वेट कर रहा है वो घर के बाहर मुंह खोल के। वो मदर्स डे पे जैसा कोट्स लिखते हैं ना कि व्हाई इज ओनली टुडे मदर्स डे एवरी डे Why is only today Valentine Day? Every day is Valentine Day. you have to Nice. love throughout 365 days इसका कैसे 5 साल चला है मैं ये जानना चाहती हूँ। हाँ चिराग वही बोलिए थिंग। उसके बाद तो 6 साल तो यार मुझे वो बंदियों का इंटरव्यू करना है एक बार। how was the traumatic experience उसको कॉमेडी करना चाहिए, तू क्यों कर रहा है? उसकी हालत कितनी बुरी हो चुकी होगी। मैं तो रिलेशनशिप बीट करता ही नहीं Obviously. तेरी गर्लफ्रेंड को लोग नहीं तुम्हारी Yeah, go ahead. अगेन दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू गुल्लक, No, बट तुम्हारी किसी एक्स की शादी हुई है क्या? बहुत सारे नहीं एक का फरवरी में है इन्वाइट किया है, पहले से बता रहा। तेरे प्रत्याशा हुई है, बहुत एक्सेस की हुई है। मतलब बहुत
दोस्तों की हो, बहुत तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट लाइक हाँ, एक दो की हुई है. ये हाउ डज इट फील? When I was younger, it used to feel bad. Now it's just हाँ ठीक है. जब अच्छा, पहली बार consent होती है voting. तब बुरा लगता है, उसके बाद लगता है ठीक है जो भी है. अरे इस सब का सोल्यूशन है ना मेरे पास दोस्तों. मैं तो उसके संगीत में डांस वांस भी कर चुकी हूँ. ठीक है, अब fuck it. वाह. सॉल्यूशन सॉल्यूशन Solution बताओ. Yes दोस्तों. मेरा लाइफ का एक ही मोटो है कि अगर सोचो आज ब्रेकअप हो गया तो कल से दोस्त. नहीं बकवास. आज ब्रेकअप हो गया, कल से डोंट एग्जिस्ट. नहीं और कल जो से दोस्त कल वोस्त से is क्या, कल nonsense. से शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर करो. बाप रे बाप, मेरा आज तक किसी के साथ, मैं इसीलिए नाम नहीं ले सकता ना, आज तक किसी के साथ रिश्ता नहीं है कि बात नहीं होता है. कभी कभी मैं वीडियो शेयर करो तो पे आ जाओ और ये करा लो. आते थे और बहुत सारे लोग. उल्टा उनको लगता था चलो क्रीप नहीं है, इसके शो ही चले जाते हैं, अभी चलेगा. Are you guys on friendly terms with your exes? Yes, I am. You are, yes, but the Praneet and Chirag, are you on हाँ. friendly terms? यार मेरा तो सेम ही लॉजिक है रता की तरह. वही दोस्त तो रहते हैं, वो टिकट वाला लॉजिक नहीं, लेकिन मैं दोस्त तो रहता हूँ. No man, I hate all of them except one who acts as a consultant in my life now. वाह. जो मेरे को सबसे ट्रॉमेटिक वाली एक्स थी, उसको मैं बस एज अ कंसल्टेंट ओकेजनली कॉल करता हूँ कि यार ये हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, तो बताती है एक्चुअली अगर वैसे कर रही है तो शी इज ट्राइंग टू डू दिस. तो वाओ, इस सेक्स का नंबर मुझे भी चाहिए फिर. इसका क्या मतलब है जानने के लिए. Cool. One last question and we'll wrap it up because कितना टाइम हुआ है भाई, देखें आधा घंटा क्रॉस हो गया ना. आधा 2 क्रॉस हो घंटे गया. पहले आधा घंटा क्रॉस हो गया. मतलब अच्छा गया. ज्यादा ही बढ़िया. हाँ, गुल्लक का बताओ लास्ट क्या. लास्ट के 2 एपिसोड रिलेटेड है तो साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं. कल बोर्ड का पेपर है एंड किराना, जिसमें बेसिकली दैट the cricket match happens, this guy comes to watch and whatever, and Kirana में the final result comes out. So any moments that stand out for you, anything that you like? We spoke about the brothers bond. Is there anything else that stands out for you? Any jokes or anything? the political party scene, right? Yeah, the political party scene. I'll tell you one thing which I really liked about is that this was the time when the father was actually feeling proud about the elder son. Yeah. और वो एक तो मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन से ही कन्वे करा था, और दूसरा जब वो घर आता है और उसकी मम्मी कहती है कि कल एग्जाम, कहता है तुम चिंता मत करो, हमारे लड़के कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे. तो वो बड़ा अच्छा हार्टफील्ड सा मोमेंट था. और प्लस मुझे ये भी अच्छा लगा था कि ये तो गिवन ही था दोनों भाइयों के बीच में कि पापा को नहीं बताएगा ये. कि मतलब इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है ही कि ये पापा को रिवील मत करना, जो भी तुम्हें करना है हमारे से कर लेना. उसमें एक फनी सीन बहुत होता है, जैसे वो फोन आता है तो उसका चप्पल पॉलिश करने लग जाता है उसे दिखा हाँ. कि मुझे भी लेके चलो. मुझे वो पार्ट भी इंटरेस्टिंग लगा जब वो जाता है मैच देखने, छोटा भाई, और फिर घर आता है और वो उसको डांटता है ना कि यार क्या कर रहा है तू, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, ये वो फालतूगिरी जो भी है. और वो छोटा भाई उसको बोलता है और तू क्या कर रहा है, तू भी तो टाइम वेस्ट ही कर रहा है, पॉलिटिशियंस के लिए समोसे बांट रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है. तो वो मेरे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अच्छा था वो उसका कमबैक. क्योंकि ऐसा मतलब लगा था कि कुछ उसे प्यार से समझाने वाला है, कुछ करने वाला है. चित्रप्रता को नहीं लगा क्योंकि उसने तो छोड़ दिया था क्रिएटर पे कि आपको जो करना है करो, आई विल नॉट गेस. एंड उससे पहले वाला सीन अच्छा लगा था जब उसका भाई को वो जब उठा रहे थे. वो बहुत अच्छी, बड़ा बढ़िया फिजिकल कॉमेडी मोमेंट था जिसमें कूदता ही और नीचे से पैर पकड़ लेता. Anything about the series that you did not like or that you thought could have been better, or anything that you expect more from the 3rd season? एक तो ओपनिंग सीक्वेंस बदल दो. कभी अकड़ सुन लिया भाई हमने, देख ली पूरी कॉलोनी, घर भी देख लिया हमने, टूथपेस्ट सब देख लिया. अभी कुछ उसमें नया, मतलब उसका इंट्रो थोड़ा चेंज होगा इस टाइम. हाँ मतलब सेम रहे तो बट उसका विजुअल्स तो चेंज होना चाहिए था. और वो कौन दो रैंडम बच्चे भाग रहे हैं भाई, उन लोग का बचपन. मुझे उन लोगों का बचपन कैसे मान लिया तुमने? ऐसी गलिबल ऑडियंस मुझे नहीं चाहिए. तुम लोग कोई ब्रेन वॉश करना इजी होता है, कुछ भी दिखा के एजेंडा सर्व कर दो. I agree.
मतलब एक तो सोनी लिव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसमें स्किप इंट्रो आता नहीं है तो वो हाँ। गाना हटाने हाँ वो सैड तो सीन तुम्हें है। खुद ही आगे बढ़ाना पड़ता I है। like how Chirag is bitching about Sunil. नहीं वही तो नहीं स्किप इंट्रो आता है, इसमें नहीं आता है। स्किप इंट्रो वो स्कैम में तो आया था। हाँ स्कैम में आता ओ, है जब और देखो स्कैम में स्किप इंट्रो तो हाँ, करने का मन है कूलर नहीं। है नहीं, हाँ वही स्टूपिड ऐप स्टूपिड फकिंग बॉसेस जब देखो तो बैठ काम काम काम। Any other changes other than the intro? Any expectations from season 3 for Gullak? एक और चीज मैंने नोटिस तुमने वो उसके बाप के बाल बदल गए ना सेकंड सीजन हाँ। में। Yeah. है ना पहले थोड़े ज्यादा फैले हुए होते थे। हाँ, Budget बढ़ गया होगा ना? हाँ, अभी नहीं तो ज्यादा बजट कुछ नहीं बढ़ा है 20-25 दिन में पता शूट करके खत्म कर देते हैं ये। Oh wow. हम्म। Anything else, guys? Any other moments that you thought? चाहता हूँ कि बड़ा भाई का भी कुछ हो जाए अभी। I was expecting. I am very much expecting a love angle in the third season now. हाँ इसका भाई मतलब बड़ा भाई का भाभी कुछ आ जाए ऐसा। Yeah. छोटे का तो चांस नहीं लग रहा है, बड़ा ही कुछ कर सकता है। हाँ You never know. Cool. This has been so much fun. आप लोगों के गिफ्टिंग और गुल्लक के बारे में जान के प्लीज से बाय टू द स्ट्रीम वंस a lot of people came and went a special bye to Mohit also please बाय मोहित बाय and to all Praneeth's fans इतने सारे फैंस जो आए थे उन सबको बाय। अरे 4-5 कमेंट आरजे प्रणीत के लिए आ चुके हैं आरजे क्यों लिखे हैं लोग पता नहीं चल रहा। तुम लाइव जाके दिस इज आरजे प्रणीत नहीं बोलते या फिर सिर्फ प्रणीत बोलते हो? मैं तो प्रणीत ही बोलता हूँ यार, वो बहुत ज्यादा ओवर द टॉप लगते हैं हर चीज में। वो वैसे सीए अजीत वो कैसा सीए लगता है। I am सबके I am sorry. ending the stream. Just give me a moment. Thank you so much for everybody who watched this video.